हाँ जी मैडम, लाइव हो गया, लाइव हो गया। फेसबुक का लिंक अब दूंगा। हाँ जी, आपको माइक देंगे ना, ये लो। मना कौन कर रहा है माइक? कब चाहिएगा आपको? अभी स्टार्टिंग में ही ना भाई, यही चाहिए आज तो। Better than heaven or Arcadia, I love thee, O my India, and thy love I shall give to every brother nation that lives. God made the earth, man made confining countries, and their fancy frozen boundaries. But with unfound boundless love, I behold the borderland of my India expanding into the world. Happy Independence Day and heartily good morning to my dear patriots. Today, on this beautiful morning of India's 74th Independence Day, I welcome you all to the beautiful campus of RPS Public School Coastal and congratulates you all for the 74 years of freedom on behalf of my entire RPS family. Now, I would like to request our chief guest, Ms. Nishra, to along with our dear principal ma'am, to hoist the national flag. I would like to request you all. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Probably here there is hardly anyone who woke up on the midnight of 15th August 1947 to hear India strike with destiny. We are born in an independent country and hence probably understand very little about insult of being governed by a foreign power. It is the most auspicious day for the people of India because India became independent after lots of hardships and sacrifices of the brave Indian freedom fighters. From that day onwards, 15th August became a very important day in Indian history and in the hearts of every Indian. Also, the entire nation celebrates this day with the full spirit of patriotism. One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. This quote by Netaji means that we are the human incarnations of the ideas that our ancestors have thought of.
We must strive harder every day of our life for a better India that is prosperous and equal to all its citizens. Music and rhythm find their way into the secret places of the soul. So now I would like to request our orchestra to present an instrumental presentation. Today, I have one very energetic and young mind with me, who indeed has great thoughts and belief in herself. She is one of our CBSE topper of batch 2019-20 and flag bearer of young generation. I would love to invite Ms. Nishtha with all of us. थोड़ा इधर घुमाना बहुत सर, तो थोड़ा इधर घुमाना कैमरे में, थोड़ा सा और घुमाओ।
बस रहने दो। Pranam, Nishtha. Pranam. How are you and how does it feel to be back in the school where have you completed your studies? I am so glad. Okay, this is almost like breaking the stereotype and acknowledging the strength of our students. Today, on the occasion of Independence Day, you got the opportunity to hoist the national flag. How do you feel about that? I have seen first time when a student is getting an opportunity to host and flag. Almost esteemed personalities are getting this opportunity. I am so proud and privileged to host the flag. Very well said. Next thing I would like to ask you is the current issue right now that the entire world is fighting with is COVID-19. As a student, what is your opinion about all the people working during this pandemic to serve the humanity in their own ways? What is your view on Corona warriors? They are doing their best. All doctors, nurses, police, and of course teachers. Teachers are not highlighted in this pandemic, and I must say they must be highlighted. They are doing their job, and salute to all corona warriors. Very well said. I agree that all the corona warriors are doing their best and serving the humanity in the best possible way, and so are our teachers, and even the students are working really hard because this is the first time that they are studying with online classes. Okay, you have just got 12th grade with flying colors and you must be working hard for your future. But during this world crisis, when the entire nation and especially education system is facing this massive lockdown, how are you managing with your studies? I don't think it is a big problem because we are having our regular online classes as per daily school days, and we can do our best with these online classes. And we can see the positive part of this lockdown. We are saving our traveling time and much more. Okay. Now that you have passed your 12th and you are ready to step in the big world, do you feel compassionate toward any social cause or would you like to do something about it if given a chance? Yes, I am compassionate towards environment. I would like to do gardening, planting, and for and something for our environment. Uh, Great. Even I agree on this with you that today's era, we really need to work toward our environment and we really need to work towards the climate change. Otherwise, the humanity will be in a deep trouble. Peter girl, it has never been easy to fly high, especially in a country like ours. But gradually, scenario is changing these days. What are your views on how girls are managing in our society? Would you like to pass on any message to our young girls? Being a girl, my parents have always supported me. They have given me opportunity to fulfill my dreams. I think this opportunity should be taken as a responsibility and we should not misuse it. Very good. So, at last, I would like to ask you on the occasion of this 74th Independence Day of India, would you like to give any message to our students? Our forefathers have brought this freedom to us and we should work hard for a better nation. Thank you so much, Nishtha, for your valuable views.
Now I would like to invite our dear principal ma'am for saying a few words of motivation to all our viewers today. Ma'am, please. Professor ma'am, you sir, all the viewers who are watching this program tonight, the chief guest of the day, respected parents, partner, and my dear students. Happy 74th Independence Day. First of all, salutes to all Corona warriors who did their duties well, performed their duties. कर्तव्यम अनिवार्यम निश्चय बलिदानम वीर लक्षण बलस्य दीन विज्ञान। आज हम शहीदों को याद करते हैं जो इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं एवं आज देश की आन बान और शान के रूप में पूजित और अमर हो गए हैं। हमें सिखा गए हैं कि जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। है जरूरी लहर के संग खेलना तब जब हो समंदर पर नशा तूफान। ये देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, एक राष्ट्र पुरुष है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर इसकी शिखा, कश्मीर इसका किरीट है तो पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल कंधे, विंध्याचल इसकी कटी है तो नर्मदा इसकी करधनी, और पूर्वी पश्चिमी धार इसकी जंघाएं हैं तो कन्याकुमारी इसकी चरण है, जिस चरण को महासागर पखारता है। जब चांद सूरज उदित होते अस्त होते हुए इसकी आरती उतारते हैं तो हम और आप आज पीछे होते। चलिए वंदना करते हैं अपने इस देश की। ये वही तर्पण और अर्पण की धरती है जिस पर ईश्वर अवतरित होते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, परशुराम जैसे अवतारों के रूप में, तो कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तिलक, पटेल, गांधी के रूप में। और भी आज भी इस धरा पर कुछ ईश्वरीय शक्तियां विद्यमान हैं हमारे नन्हे नन्हे बच्चों के रूप में, तो विद्यार्थी बन विद्या का अर्जन करते हैं और उन विद्यार्थियों को विद्या देते हैं हमारे शिक्षक। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने एक बार कहा था कि श्रेयताम धर्म सर्वस्वम शुत्वा चैव भारताम आत्मनः प्रतिभूतानि परेशान में समाज। मुझे याद आता है अपने बचपन का वो घटनाक्रम। जब मैं छोटी थी, पहली क्लास में मुझे सिखाया गया था, मेरा टीचर कहता था 2 + 2 4, और एक्सटेसी में मैंने उनसे पूछा कि why 2 + 2 is not 5 or 3, why it is 2 + 2 4। बहुत ही नासमझ सा सवाल था। जनरली स्कूलों में सभी बच्चे, सवाल बड़ा नॉर्मल था, बड़ा ऑर्डिनरी था, लेकिन जवाब बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। टीचर ने कहा कि जब कभी तुम बड़ी हो जाओ और कोई भिखारी तुमसे भीख मांगे और तुम 2 + 2 3 ना करो, इसीलिए 2 + 2 4 है। जब कहीं तुम किसी दुकानदार के पास जाओ, वहां उससे लेते वक्त 2 + 2 5 ना हो, इसलिए 2 + 2 4 है। इस छोटे से गणित के सवाल ने मुझे नैतिकता का वो पाठ पढ़ाया जिसको आज तक मैं अपनी जिंदगी में अपने साथ लेकर चल रही हूँ। और आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने उन सभी बच्चों को भी ये नैतिकता का पाठ देना चाहती हूँ कि ईमानदारी हमारा सबसे बड़ा आभूषण है, हमारा सबसे बड़ा गहना है, जिसे हमें साथ लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है और हिंदुस्तान को सर्वश्रेष्ठ आज घोषित करना है। ये मौका आ चुका है। टीचर हमारे देश का भविष्य है। भविष्य क्यों है? क्योंकि वो हमारे आज और कल के बीच में एक सेतु का कार्य कर रही है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक टीचर ने टीचर्स डे पर बच्चों को कहा कि आज कुछ आप स्पेशल एक्टिविटी करो, तो बच्चों ने कहा ठीक है कि हम आज आपका रोल प्ले करते हैं और हम आज पूरी क्लास को हैंडल करते हैं, सर आप ऑब्जर्व कीजिएगा हमारी कैसे हैंडल। एक बच्चे ने टीचर का रोल प्ले किया। पूरा दिन जब कंप्लीट हो गया तो वो टीचर के पास जाता है और पूछता है कि सर आपने मेरा इवैल्यूएशन किया होगा, आप प्लीज बताएं अगर आई पास हो। देन टीचर सेड कि वास्तु तुमसे ज्यादा अच्छा टीचर है। उसने कहा सर हाउ? बजाय उस क्वेश्चन के आंसर को देने के टीचर ने कहा आउटसाइड द स्कूल देयर इज अ पोर्टर, तुम जाओ, उसको जाता है एक मुझे।
उसने 1 महीने उस पोर्टर के साथ काम किया एंड अल्टीमेटली आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ वो वापस आता है टीचर के पास और आकर कहता है सर आई फेल, मैं उस पोर्टर को नहीं पढ़ा सका बिकॉज उसके पास वक्त ही नहीं था। टीचर सेड वासु भी गया था बट वो भी फेल हो गया, वो भी उसे नहीं पढ़ा पाया। तो बच्चे ने कहा सर जब वासु फेल हो गया मैं भी फेल हो गया तो हाउ वासु इज बेटर देन मी, वो मुझसे अच्छा टीचर कैसे है? टीचर ने कहा एट द एंड ऑफ द मंथ वासु ने घड़े बनाना सीख लिया था, he learned pottery, तो इसलिए वो तुमसे ज्यादा बेहतर। टीचर को कंसिस्टेंटली जिंदगी में सीखते रहना होता है और जब वो सीखते रहते हैं तो वो जीतते रहते हैं और उनके बच्चे जीतते हैं। आज इस कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में हम चारों तरफ जब फंसे हुए हैं तो हमारा टीचर दिन रात सीख रहा है और वो सीखते सीखते जीत रहा है और अपने बच्चों को भी वो जीतने की कलाएं सिखा रहा है। सैल्यूट करते हुए मैं अपने उन सभी टीचर्स को जो एमिनेंट पर्सनालिटी है, जो शायद कोरोना वॉरियर्स की उस लाइन में सबसे आगे मुझे खड़े हुए दिखाई देते हैं, जहां एक तरफ डॉक्टर नर्सेस सभी की जान बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। हमारे देश के सारे टीचर्स, वो किसी एक राज्य के नहीं है, वो किसी एक प्रांत के नहीं है, वो किसी एक एरिया के नहीं, पूरे देश के सारे टीचर्स अपने बच्चों को, अपने भविष्य को बचाने में लगे हुए हैं, जिसके लिए मैं उनको तहे दिल से लाइफ बिकम्स स्टेगनेंट अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं सीखते हैं, यदि हम जिंदगी में कंटिन्यूअसली एस्पेक्ट्स को समझते हुए पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ते हैं, यदि हम जिंदगी में सीखने का एक जुनून जारी नहीं रखते हैं, तो ये हमारे टीचर्स कर रहे हैं जिसको हमारे बच्चे एडमायर भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। आज हमारे पेरेंट ने अपने बच्चे पर विश्वास करके उसके हाथ में ये गैजेट दे दिया। समय की मांग, आज अगर बच्चे के हाथ में ये गैजेट नहीं होगा तो शायद वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस से महरूम रह जाए। मैं अपने बच्चों से बात करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि जब हमें विश्वास मिलता है, जब हमें कोई एक जिम्मेदारी दी जाती है, तो उस जिम्मेदारी के प्रति हमें पूरी निष्ठा के साथ, पूरे अलर्ट होकर, सचेत होकर, सजग होकर, जागरूक होकर उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। आज अगर आपके पेरेंट्स आप पर विश्वास कर रहे हैं, आज अगर आपके टीचर्स आप पर विश्वास कर रहे हैं, हम फिजिकली एक दूसरे के सामने नहीं है बट फिर भी है, ना होकर भी हम हैं एक दूसरे के साथ, तो इस वक्त ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस साइंस को मिसयूज ना करें, हम इस गैजेट को। हमारे पास वक्त बहुत है। पहले स्कूल में आना होता था, मॉर्निंग में उठते थे, तैयार होते थे, उसके बाद स्कूल में आते थे, बस में आने का जाने का वक्त होता था, शरीर थक जाता था, घर जाने के बाद आराम मांगता था। वो सारा का सारा जो ड्यूरेशन जितने तक के लोग टाइम होंगे, हम समय को बर्बाद भी करते थे। आज का पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम देखें तो बच्चों के पास बहुत सारा वक्त, वो चाहे तो यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप आज अपने वक्त को यूटिलाइज करेंगे तो शायद कल सेल्फ रिलायंट इंडिया बनने से देश को कोई भी नहीं होगा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस मुहिम को चलाया है, हम स्वावलंबी बनेंगे। हम स्वावलंबी तभी बन पाएंगे जब हमारे देश का आज आने वाले कल के लिए तैयार होगा। बिकॉज सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो एक बहुत बिग सिस्टम ये हमारे हिंदुस्तान में डेवलप करने की कोशिश की, प्रोड्यूस इंडिया इन द कंट्री एंड इट विल लुक further to make some efforts to prove itself as a hub for the manufacturing। और ये इंडिया तभी रेडी हो पाएगा जब हमारे आज का जो बच्चा है वो भविष्य के लिए तैयार। काफी तरह हम देखते हैं, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बताते हैं कि बच्चे दिन रात लगे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद विरोध कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा सिस्टम होता है देश के अंदर जो बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए आज इस वक्त, क्योंकि आज अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो शायद आप आने वाले भविष्य में सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि राजनेता भी आप ही हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आप ही हैं, हमारे सोल्जर्स भी आप ही हैं। अगर आपका पेरेंट ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहा है तो वो आपको सिखा रहा है कि आप किस तरह से ईमानदार एक इंसान बने, सिविलाइज्ड सिटीजन बने। तो हमारे बच्चों को अपने पेरेंट्स से सीखना पड़ेगा कि जब ईमानदारी से हमारे पेरेंट्स सारी चीजें कर रहे हैं तो हमें ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। बहुत सारी मुहिम देश के अंदर चल रही है। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम कसम खा सकते हैं अपनी प्रकृति के साथ ईमानदार रहने। शायद मनुष्य ने कुछ छेड़छाड़ की और आज हम कोरोना में फंस गए। आज हमें आवश्यकता है स्वच्छ भारत को जारी रखने की। आज हमें आवश्यकता है गंदगी मुक्त भारत को बनाए रखने की।
आज हमें आवश्यकता है कि इस कोरोना ने जब हमें सैनिटाइज्ड होना सिखाया, जब हमें सिखाया कि किस तरह से हम हाइजीन की तरफ फोकस करें, इसको कंटिन्यू, शायद हो सकता है कि कभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, कभी शायद हम इस संसार में अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। We have to strive hard, we have to study hard and achieve the hard. जैसे आपको पता ही होगा राफेल आया है, और जब राफेल आया है हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का, एक सम्मान का विषय हो जाता है। ये हमारी सेना को सुदृढ़ करता है, समृद्ध करता है, और हमें सिखाता है कि हमें अपने देश के लिए आगे बहुत कुछ करना है, कुछ ऐसा असंभव जिसको संभव शायद हम कर पाए। ये हमें वो शिक्षा देता है। इसके लिए कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी, आशा है कि आप शायद समझें मेरी पंक्ति। अपनी फोर्सेस को समर्पित कुछ पंक्तियां हैं। सिंह समान है, सैन्य दल ही राष्ट्र स्वाभिमान और सम्मान है। वीरता की गाथा का वर्णन करूं मैं क्या भला, एक गरज राफेल की हो शौर्य जागे प्राण में, हौसले चट्टान से अंगार सीने में भरे, महासागर की हिलोरे ज्वार भाटी जान में, रक्त रंजित देह जब तिरंगे में मिले, एक सुहागिन की वो आन, माँ बहन का वो मान है। पाई चल हर सिंह समान है, सैन्य दल ही राष्ट्र स्वाभिमान और सम्मान है। चीन के लिए समर्पित है। मित्र षड्यंत्रकारी सात घाटी तोड़ देंगे, गीदड़ों की भभकी भी क्या रुख हवा का मोड़ देंगे, सैनिकों को है भरोसा शत्रु पथ को छोड़ देंगे, रच नया इतिहास श्रेष्ठ विशिष्टता से जोड़ देंगे, है तिरंगा हाथ में गलवान भाभी को समर्पित, मानचित्र पे हिंद के वो राष्ट्र का अभिमान है। पाई जल सिंह समान है, सैन्य दल ही राष्ट्र स्वाभिमान और सम्मान है। पाई जल बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद। The Lord's Supper is commemorative, and so it has the nature and use of a pledge or token of love, left by a dying to a dear surviving friend. Now I would like to request our dear Principal Ma'am to give away a token of love to our chief guest, Ms. Nishtha. मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, फिर गम में डूबे शहरी क्यों, बेचैन ना हो मायूस ना बन, सरहद पर सेना बैठी है। Now I would like to request Lavanya from RCS Kotri to recite a poem.
We are sharing the screen for Lavanya. मैं लावण्य त्रिलोक शर्मा कक्षा तीसरी का छात्र आरपीएस पब्लिक स्कूल कोसली रेवाड़ी से दिनकर जी की एक कविता सुना रहा हूँ जिसके बोल हैं, हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक, बलिदान बताने आया हूँ। क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा फिर कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, जिसके रंग से बनता है रण का केसरिया बाणा, ओ कश्मीर हड़पने वालों जरा कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मिट्ट का सन्नाटा, लाशों की रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Lavanya. संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज के लिए उड़ान देता है। So, to convey the patriotism in our hearts, I would like to invite our talented T.N. Pathak sir for a song. Thank you very much for giving me this chance. Before starting my song, I would like to say few lines. चलो फिर से वो नजारा याद करें, चलो फिर से वो नजारा याद करने, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद करने, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद करने। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो ज़मानी जोखों में नहाती नहीं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने के, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। Thank you so much, sir, for such a beautiful song. Meet means where the end begins. Echoes, where your world is me and my world is you. Now I would like to invite Bhuvi for a beautiful poem. कलम की सुगंध मंच को जी आदर दरवंदन। आज के इस आयोजन को समर्पित है मेरी कुछ पंक्तियाँ। हंस वाहिनी माँ से स्वर में दृढ़ता का वर चाहती हूँ, अटल इरादे अड़ग रहे मैं स्थिरता का वर चाहती हूँ। आज सभा में लाज मात है हाथ तुम्हारे मान रखो, मैं तृण सम हूँ तूफानों में चिरता का वर चाहती हूँ। राफेल को समर्पित हैं कुछ पंक्तियाँ। दहकता अंगार जाबाजी बखानी, आ गया राफेल देखो आसमानी। आ गया राफेल देखो आसमानी, आ गया राफेल देखो आसमानी। सेना की ताकत बढ़ानी थी हमें, जिसने दी निस्वार्थ कुर्बानी हमें। ये रचेगा शौर्य की अद्भुत कहानी, आ गया राफेल देखो आसमानी। आ गया राफेल देखो आसमानी, आ गया राफेल देखो आसमानी। जल की शीतलता से अभिवादन किया, वायु सेना में इसे शामिल किया। छावनी अम्बाला की हो गई सुहानी, आ गया राफेल देखो आसमानी। आ गया राफेल देखो आसमानी, आ गया राफेल देखो आसमानी। चंद मिनटों में धुमिल कर पाक को, चीन को कर दे सुपुर्दे खाक वो। उसकी गति और चाल से होती हैरानी, आ गया राफेल देखो आसमानी। दहकता अंगार जाबाजी बखानी,
आ गया राफेल देखो आसमानी। धन्यवाद। करो करो। Thank you so much, Bhuvi. कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। With these words, to conclude our Independence Day celebration, we will have our school song now. सपनों को साकार करता है, नवअंकुर में प्राणों का संचार करता है। आरपीएस सपनों को साकार करता है, नवअंकुर में प्राणों का संचार करता है। आरपीएस है एक नारा, समर्पित हो जीवन सारा। आरपीएस है एक नारा, समर्पित हो जीवन सारा। इसके संचालक संस्कारी, जिनके अभिभावक आभारी। आरपीएस सपनों को साकार करता है, नवअंकुर में प्राणों का संचार करता है। गुरुओं की वाणी ऐसी अविरल गंगा बहती है। गुरुओं की वाणी ऐसी अविरल गंगा बहती है। ज्ञान का सागर सूर हमारा, सारी दुनिया कहती है। स्वर्णिम मौका पास तुम्हारे, अब तुम हमसे जुड़ जाओ। ज्ञान सिंधु में डुबकी लगाकर अनुपम रत्नों को पाओ। आरपीएस आरपीएस हर्षित मन से ये गाओ। आरपीएस सपनों को साकार करता है, नवअंकुर में प्राणों का संचार करता है। चाहूं दिशाएं बोल रही हैं, शिक्षा का सम्मान करो। चाहूं दिशाएं बोल रही हैं, शिक्षा का सम्मान करो। पढ़ लिख कर तुम जीव जगत में माता पिता का नाम करो। हम सब जुड़ने को तत्पर हैं, आओ एक नई राह बनाए। कठिन परिश्रम गुरु कृपा से अपनी मंजिल को पाए। आरपीएस आरपीएस हर्षित मन से ये गाओ। आरपीएस सपनों को साकार करता है, नवअंकुर में प्राणों का संचार करता है। आरपीएस सपनों को साकार करता है, नवअंकुर में प्राणों का संचार करता
हंसते हंसते शूली पर चढ़ने वाले, नजर नहीं आते अब वैसे मत वाले। स्वतंत्रता संग्राम के सच्चे सेनानी भगत सिंह थे फौलादी सीने वाले। फिरंगियों से ऐसा जमकर युद्ध हुआ, राजगुरु सुखदेव का सच्चा संग हुआ। संसद में बम फेंक डरे न भागे वो, देख वीरता उनकी दुश्मन दंग हुआ। देश है अब आजाद, स्वतंत्रता दिवस मनाएं, वीर शहीदों को पर न कभी भुलाएं। कायम रखना आजादी को हर कीमत पर, प्रण कर ले जीवन भर ऐसा हम कर पाए। Freedom in the mind, faith in the words, pride in our soil. Let's salute the nation on this Independence Day. Thank you so much, everyone, and let's pledge to make our India a better place to live in. Jai Hind, Jai Bharat.